عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ماہ رمضان 2021 کے لیے نہیں نظر آیا چاند، ہندوستان میں 14 اپریل سے ہوگا رمضان کا آغاز بجز کچھ ساحلی علاقوں کے۔ کاشی وشوناتھ مندر مسجد تنازع پر فیصلہ دینے والے جج کا تبادلہ، بھیجے گئے شاہجہاں پور۔ عدالت نے نظام الدین مرکز واقع بنگلہ والی مسجد کا تالا کھولنے کی دے دی اجازت۔ غلط فہمی میں نہ رہیں، لاک ڈاؤن نہیں لگنے والا۔ نوجوان بندوق چھوڑ کر اپنے حقوق کے لیے جمہوری طریقہ اختیار کریں، محبوبہ مفتی کا بیان۔ خدا بخش لائبریری کو بچانے کی مہم تیز، سابق IPS امیتابھ داس نے صدر جمہوریہ کو لوٹایا پولیس میڈل۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا مذہبی نہیں بلکہ منافرت پھیلانے والا دہشت گرد ہے، ڈاکٹر ایوب کا بیان۔ حکومت کی لاپرواہی سے اسپتالوں کے گیٹوں پر مریض دم توڑ رہے ہیں، اجے کمار للو۔ کورونا میٹرو DTC کلسٹر بسوں میں مسافر کی تعداد کم کر دی گئی۔ اینٹلینیا معاملہ، انسپکٹر ریاض قاضی کو گرفتار، 16 اپریل تک NIA کے تحویل میں رہیں گے۔ اماکانت لکھیڑا پریس کلب آف انڈیا کے نئے صدر ہو گئے منتخب۔ الیکشن کمیشن کا نام بدل کر MCC رکھنا چاہیے، ممتا بنرجی کا بیان۔ کورونا پابندیوں خوف کے سب کاروبار میں 30% کی کمی۔ ایران کو کورونا کی چوتھی لہر کا سامنا، بیشتر علاقوں میں 10 روزہ لاک ڈاؤن۔ ترکی خاتون اول امینہ اردوغان کا عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے اہلیہ کے نام مراسلہ۔ چین کوئلے کی کان میں پانی بھر گیا، 21 کارکن ہو گئے محصور۔ میانمار مارشل لاء مخالف احتجاجی مظاہرے جاری، اموات کی تعداد 701 تک جا پہنچی۔ وزیر داخلہ سلیمان سویلو کی لیبیا کے وزیر داخلہ خالد التجرانی مازن سے ملاقات۔ جوہری تنصیب پر حملہ اسرائیل نے کیا، بدلہ ضرور لیں گے۔ جبوتی میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 34 افراد ڈوب کر کے ہلاک۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ رمضان المبارک 2021 کے لیے چاند نظر نہیں آیا۔ اس طرح سے رمضان المبارک کا آغاز 14 اپریل بروز بدھ سے ہوگا۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں کہیں سے بھی چاند دیکھنے کی اطلاع نہیں مل سکی ہے۔ اسی طرح سے کل 13 اپریل بروز منگل کو نماز تراویح کی شروعات ہوگی۔ بنگلورو میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی حتمی اعلان کر دیا گیا ہے۔ کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کی کہیں سے بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ کرناٹک کے کسی بھی ضلع سے نہیں اطلاع ہے، اسی طرح دوسرے صوبوں سے بھی کوئی اطلاع نہیں مل سکی ہے، جبکہ کرناٹک کے ساحلی علاقے بھٹکل میں اور منگلور وغیرہ میں، اس کے علاوہ کیرلا جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر جو چاند کے دیکھنے کا اعلان ہو کر کے آج سے رمضان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس طرح سے ناظرین گرامی پورے بھارت میں من جملہ طور پر کل باقاعدہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، کاشی وشوناتھ احاطے میں واقع گیان واپی مسجد تنازع معاملے میں آثار قدیمہ کے سروے کا حکم دینے والے جج کا وارانسی سے تبادلہ ہو گیا ہے۔ وارانسی میں سول جج سینئر ڈویژن فاسٹ ٹریک کورٹ نے عہدے پر تعینات آشوتوش تیواری کا وارانسی شاہجہاں پور ٹرانسفر کر دیا۔ جج آشوتوش تیواری کی عدالت نے ہی مندر مسجد احاطے میں ہندوستانی آثار قدیمہ کا سروے کرنے کا حکم 8 اپریل کو دیا تھا۔ 9 اپریل کو ہی ان کا تبادلہ شاہجہاں پور کے لیے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، تقریباً 1 سال قبل ہندوستان میں جب کورونا انفیکشن کے معاملوں میں بے تحاشا اضافہ شروع ہو گیا تھا تو میڈیا کے بڑے طبقے نے دہلی کے نظام الدین واقع تبلیغی جماعت مرکز کو اس کے لیے کافی حد تک ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اس وقت کافی ہنگامہ ہوتا، کئی لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی تھیں۔ اس دوران مرکز حضرت نظام الدین واقع بنگلہ والی مسجد میں تالا بھی لگا دیا گیا تھا، جو کہ اب تک لٹکا ہوا ہے، لیکن اب دہلی ہائی کورٹ نے مسجد میں نماز کی اجازت دے دی ہے اور اس خبر سے مسلم طبقے میں خوشی کا عالم ہے۔
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन के सिलसिले में जिलों में अफसरों को काफी सख्त लहजे में वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में ना रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम आवाम को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से पूरी तैयारी करें, जरूरत के मुताबिक निजी अस्पताल मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। उन्होंने जिला में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। योगी ने हाल ही में आला सतही मीटिंग में कोरोना बढ़ते इन्फेक्शन के सिलसिले में जायजा मीटिंग की थी। नाज़रीन, पीडीपी सदर साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने कश्मीर के नौजवानों से बंदूक को छोड़कर जमहूरी तरीके को इख्तियार करके अपने हुकूक के लिए लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बंदूक उठाएं ताकि हम दुनिया को बता सकें दहशतगर्द है। उनका कहना था कि पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया अभी भी सही सालिम है और उसका बड़ा मकसद दफा 370 की बहाली के लिए लड़ना है। नाज़रीन, तारीखी खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के एक बड़े हिस्से को बिहार हुकूमत के जरिए मुनहदिम करने के मंसूबे के खिलाफ साबिक IPS ऑफिसर अमिताभ कुमार दास ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपना पुलिस मेडल सदर जमहूरिया हिंद को वापस कर दिया है। अमिताभ कुमार दास ने मुल्क के सदर रामनाथ कोविंद को लिखे गए खत में कहा कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बदउनवान ठेकेदारों और टेंडर माफिया के हुक्म पर पटना में तारीखी खुदाबख्श लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों को मिसमार करने का फैसला किया। खुदाबख्श लाइब्रेरी पूरी इंसानियत की विरासत है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है, पूरा बिहार इस पर फख्र करता है। ये किताबों से मोहब्बत करने वाली की हैसियत से मुझे हुकूमत बिहार के फैसले से गहरा सदमा हुआ है। मैंने एक अरसे तक IPS ऑफिसर की हैसियत से मुल्क की खिदमत की है। नीतीश हुकूमत के जरिए पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी को जमींदोज करने के फैसले के खिलाफ मैं भारत सरकार के जरिए दिए गए पुलिस मेडल को वापस कर रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे अफजल और दुनिया को इंसानियत और ख़वातीन के वक़ार की पैरवी करने वाले वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले ख़वातीन को इज़्ज़त बख्शी। आज जो लोग मजहबी इस्लाम और उनके पैगम्बर के खिलाफ नफरत व बुग़्ज़ में अंधे होकर उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, वो मजहबी नहीं हो सकते बल्कि मुनाफरत फैलाने वाले दहशतगर्द हैं। नरसिंहानंद सरस्वती भी एक दहशतगर्द है जो मुल्क की खैर सगाली की फ़िज़ा दरहम बरहम करने में कोशां है। यहाँ सवाल यह है कि मुसलसल नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के सरों पर किसका हाथ है। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने जारी प्रेस रिलीज के जरिए मज़कूरा तासुरात का इजहार किया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने कोरोना के मामलात में तेजी से इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की बहुत कमी है। वैक्सीन, बेड, वेंटिलेटर और ICU की काफ़ी कमी रियासत के लोगों की तशवीश में इजाफा करने वाली है। उन्होंने कहा कि 84 दीगर ममालिक को मुफ्त वैक्सीन बरामद करने का फैसला अफसोसनाक साबित हो रहा है। अभी भी बैरून मुल्क वैक्सीन भेजे जाने पर रोक न लगना जिद की अलामत है। जिस तरह राजधानी में वैक्सीन के लिए लोगों को तवील इंतजार करना पड़ रहा है, अस्पतालों में गेटों पर मरीज दम तोड़ रहे हैं और इतना ही नहीं, शमशान घाट पर आखिरी रसूमात अदा करने के लिए रिश्तेदारों को 40-40 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे कोरोना की खतरनाक सूरत हाल, हुकूमत की लापरवाही और बेहिसी का पता चलता है। दुख दर्द और इलाज की नाकाम जद्दोजहद के बाद होने वाली मौत के मातम के दरमियान जश्न मनाने का बीजेपी हुकूमतों का फैसला गैर हसासियत की अलामत है। नाज़रीन, कौमी दारकूमत में कोरोना कोविड-19 वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र इतवार के रोज दिल्ली मेट्रो, DTC और क्लस्टर की बसों में सवारी की तादाद कम कर दी गई है। नए ऑर्डर के बाद अब मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसों में महज इस्तेदाद से 50% सवारियों को ही सफर करने की इजाजत है। नाज़रीन गिरामी, सनअतकार मुकेश अंबानी की रिहाइशगाह के बाहर धमाका खेज मादे की गाड़ी की बरामदगी, एंटलेनिया मामला और ताजिर मनसुख हरीन की मौत के मामले में गिरफ्तार शुदा मुअत्तल पुलिस अफसर सचिन वाजे के मुआविन व मुंबई क्राइम ब्रांच से वाबस्ता असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन काजी को आज यहाँ कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने शवाहिद को ज़ाय करने के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उन्हें खुसूसी NIA से अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 16 अप्रैल तक 5 दिनों के लिए NIA की तहवील में दिए जाने का हुक्म जारी किया गया। नाज़रीन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इंतखाब में सख्त मुकाबले के दरमियान उमाकांत लखेड़ा की क़ियादत वाले पैनल ने जीत हासिल की है। इस पैनल में सदर के ओहदे के लिए उमाकांत लखेड़ा ने अपने हरीफ संजय बसाक को 98 वोटों से शिकस्त दी। शाहिद अब्बास ने नायब सदर के ओहदे के लिए अपने हरीफ पल्लवी घोष को 13 वोटों से शिकस्त दी है। इधर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए विनय कुमार ने अपने करीबी हरीफ संतोष ठाकुर को 59 वोटों से शिकस्त दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे के लिए चंद्रशेखर लथड़ा ने अपने करीबी हरीफ मानुष परातुम को 108 वोटों से शिकस्त दी है।
नाज़रीन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इतवार को कमीशन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर एमसीसी यानी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए। बंगाल असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले में पोलिंग के दौरान जमकर तशद्दुद और कुछ बिहार इलाके में 4 लोगों की मौत होने पर जारी हंगामे के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सियासी जमात के कुछ बिहार जाने पर रोक लगा दी है। नाज़रीन, कोविड की वजह से आयत पाबंदियों से मुल्क के कारोबार में एक हफ्ते में 30% सारिफिन की बाजारों में आमद में 50% की कमी दर्ज की गई है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन ने कहा है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 के मामलात में तेजी से इजाफे ने सारिफिन के दिल में एक तरह की दहशत पैदा कर दी है और इसी वजह से मुख्तलिफ रियासतों से रोकथाम के लिए रात का कर्फ्यू, जिसवी लॉकडाउन और दीगर कई इक़दाम से गुज़श्ता एक हफ्ते में खुर्दा कारोबार में 30% की कमी आई है। नाज़रीन, ईरानी हुकूमत ने कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के पेश नज़र मुल्क के बेशतर इलाकों में हफ्ते से 10 रोज़ के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इसने ये फैसला मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर फैलने के पेश नज़र किया। ईरान की वज़ारत सेहत के तर्जुमान अली रज़ा रईसी ने हफ्ते के रोज़ बताया कि मुल्क के 31 में से 23 सूबों में लॉकडाउन का नफाज किया गया। इन सूबों में कारोबार, स्कूल, थिएटर और खेलों के मैदान और मराकिज़ बंद रहेंगे और रमज़ान मुबारक के दौरान में इज्तिमात पर पाबंदी आयद होगी। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन रवां हफ्ते ब्रसेल्स के लिए रवाना होंगे। अमरीकी प्रेस से गुफ्तगू करते हुए एक आला अहदेदार ने बताया कि ब्लिंकन के इस दौरे के दौरान ईरान, अफगानिस्तान और रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत होगी। नाज़रीन गिरामी, चीन के खुद मुख्तार वोइगोज़ इलाके सिंकियांग में एक कोयले की कान में पानी भरने से नतीजे में 21 कारकुन महसूर होकर रह गए। हुकाम के मुताबिक वोइगोज़ इलाके की तहसील होतोबी में कोयले की कान में सुबह के वक्त पानी भर गया था। कान में मौजूद 29 कारकुनों में 8 को बचा लिया गया, लेकिन 21 कारकुन कान में अभी भी महसूर हो गए हैं, जिनको निकालने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, म्यांमार में मार्शल लॉ मुखालिफिन के एहतजाजी मुजाहरों में पुलिस की मुदाखलत के नतीजे में हलाकतों की तादाद 701 तक पहुँच गई। सियासी कैदियों के लिए इमदादी तंजीम की कल जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की मुदाखलत के नतीजे में ताज़ा अमवात वाक़ई हुई है, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 701 हो गई, जबकि 3012 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो ने लीबिया के वज़ीर दाखिला खालिद अत्तुजरानी माज़िन से मुलाकात की है। लीबिया के वज़ीर आज़म हुकूमत कौमी इत्तेहाद सुल्तान अब्दुल हमीद दबीनी और उनका हमराहिया वफ्द, जिसमें वज़ीर दाखिला माज़िन भी शामिल है, अनकरा में वज़ारत दाखिला का दौरा किया। लीबिया में कायम होने वाली नई हुकूमत के क़याम, उसकी कामयाबी की वज़ीर दाखिला सुलेमान सोहेलो ने मुबारकबादी पेश की थी। नाज़रीन, ईरान ने नतनज़ जौहरी मरकज़ पर पेश आने वाले वाक़े की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना है कि इसराइल ईरान की तरफ से पाबंदियों के खात्मे के सिलसिले में कामयाबियों का बदला लेना चाहता है और ये कि ईरान उसका इंतकाम ज़रूर लेगा। नाज़रीन, जबूती के करीब समंदर में कश्ती डूबने से 34 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। वाज़ेह है कि एक माह के दौरान ये दूसरा ऐसा हादिसा है। खबर के मुताबिक आलमी तंजीम हिजरत के मशरक़ी अफ्रीका के सरबराह मोहम्मद अब्देकर ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि इंसानी ताजिरान इन तारिकीन वतन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे जब उनकी कश्ती को हादिसा पेश आया। बताया गया कि तारिकीन वतन जबूती से यमन जाने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, ये है आज की ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।